Hello my dear students. So we will move to the next part of hydrocarbons, that is alkanes. And in alkanes we had seen in previous class isomerism in alkane, and that isomerism was chain isomerism. We had seen chain isomers for butane and pentane, and hexane का ये आपको करना था. So you have made isomers of alkanes hexane. Now we'll move to the next aspect of alkane, and that is conformation of alkenes. Now this conformation means what? Conformation means there is spatial arrangement of atoms in 3 dimensions. We know alkanes, carbon tetravalent, and the first member is methane alkane, and it is having a tetrahedral geometry where central carbon is bonded with 4 hydrogen atoms. So this is the arrangement of methane. If we consider ethane, then we have this arrangement of ethane where 2 carbon atoms are bonded to each other. आप ऐसा रिप्रेजेंट कर दीजिए, या जैसा हम एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ethane C2H4. So this arrangement of atoms in given 3-dimensional space is what we call as conformation phenomena, or phenomena in which different atoms, they are arranged in given 3-dimensional space. Given 3-dimensional space, जिसको एक ही टर्म हम बोलते हैं in given 3-dimensional space, that is spatial arrangement. ये इसका स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन, spatial arrangement. तो spatial arrangement of atom in given 3-dimensional space to get a particular geometry or particular arrangement of atoms is what we call as conformation. अब इसको अगर हम और थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे तो क्या देखते हैं हम कि कार्बन की तो टेट्रावेलेंसी है, and in case of methane we see this kind of arrangement. लेकिन जब ethane आता है, so there is always a single bond between carbon atom. So there is always a single bond between carbon atom in alkane molecule, and hydrogen are also bonded through single bond. So there are single bond present in an alkane molecule, and in case of ethane we have carbon-carbon single bond. Now this carbon-carbon single bond is having a free rotation about carbon, free rotation, यानी ये कार्बन इस तरह से रोटेट हो सकता है. जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे ये अगर आप देख रहे हैं अच्छे से, तो ये मैंने एक 3-dimensional टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन किया. ये व्हाइट वाले जो बॉल्स दिख रहे हैं, ये बॉल एंड स्टिक अरेंजमेंट है. तो बॉल एंड स्टिक, ये स्टिक बॉन्ड को शो कर रहा है, व्हाइट वाले जो बॉल है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक वाला कार्बन के लिए. तो ये एक टेट्राहाइड्रल है ना, ये एक टेट्राहाइड्रल है. अब इसी का ये दूसरा कार्बन आ गया, ये भी टेट्राहाइड्रल है. अब ये दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे आप, ये दोनों की ओवरलैपिंग करेंगे. इस तरह की ओवरलैपिंग करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा. तो ये आ गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन ऑन द अदर कार्बन एटम. फॉर्मूला है C2H6. तो ये इथेन मॉलिक्यूल हो गया. अब इथेन में दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय coaxial overlapping of atomic orbital of carbon, and this have free rotation
देखिए आपको रोटेशन दिख रहा होगा, तो ये फ्री रोटेशन है ना। तो ये रोटेशन यानी हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को गिवन 3 डायमेंशनल स्पेस में हम मूव करते जा रहे हैं और इसका कन्फर्मेशनल चेंज करते जा रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो ऐसे वेरियस कन्फर्मेशनल आप एंगल चेंज करते जाएंगे, है ना, एंगल चेंज करते जाएंगे और यहां से आपको कन्फर्मेशन अलग अलग टाइप के मिलते जाएंगे। और ये सभी कन्फर्मेशन की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है, अरेंजमेंट भी वही है। ओनली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रोटेटिंग कार्बन एटम्स अबाउट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैज this advantage that we can rotate each carbon atom and thereby the hydrogen atom occupy different space। जैसे अभी आप देखेंगे यहां पर, अब क्या है, ये exactly एक दूसरे के सामने आ गए। अब आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, एंगल बदल गया, तो एक नया आइसोमर मिल गया। और बदलते जाइए आप, तो यू कैन हैव न्यूमरस isomers, conformational isomers, by rotating the single covalent bond about 2 carbon atom। तो ये रोटेशन बेटा जो हो रहा है ये हमें क्या देता है, conformation of alkanes in given space। So what is conformation? What is conformational? The spatial arrangement of atom in given 3-dimensional space to have different अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट। ये देखिए ये अरेंजमेंट बदलते जा रहा है ना, ये अरेंजमेंट बदलते जा रहा है ना। तो ये अरेंजमेंट जब डिफरेंट हो जाएगा उसको हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। द फिनोमिना इज सिंपली कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल के आइसोमर्स बनते जाएंगे और ये आइसोमर्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए इनको आइसोलेट करना भी डिफिकल्ट होता है। नॉट सो इजी टू आइसोलेट। आपने जैसे ये एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने रख दिया, अब थोड़ा सा इसको आपने टर्न किया क्लॉकवाइज तो एक नया कंफर्मेशन मिल गया, फिर थोड़ा और रोटेट किया एक और कंफर्मेशनल, तो ऐसे नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आपको मिलते जाएंगे। दिस इज व्हाट वी से कंफर्मेशन इन अल्केन्स। इन अवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस द कंफर्मेशनल ऑफ ईथेन। अब ईथेन का कंफर्मेशनल समझाना है तो उसके लिए हमारे पास में 2 सिस्टम है जिससे हम ये कंफर्मेशनल एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट कंफर्मेशनल्स आर पॉसिबल और ये कंफर्मेशनल हम कौन से कंसीडर करेंगे, अब नंबर ऑफ आइसोमर्स तो बनते जाएंगे, इसको आप रोटेट करते जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि we'll take 2 extreme conformations, 2 extreme conformations, बीच में बहुत सारे रहेंगे। 2 extreme conformation है ना। जैसे अब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आ गया तो आए बराबर 2-4 छक्के मार दिए, चौके मार दिए, रन बना लिए, फिर बीच में एक एक 2-2 रन, फिर लास्ट में 1-2 चौके छक्के मार दिए और टीम को मैच जिता दिया। तो उसके एक्सट्रीम एंड्स क्या होंगे, जहां पहले उसने फास्ट रन बनाए और बाद में जो फास्ट रन बना, बीच में तो वो 1-2 रन ले रहा था। वैसा ही जब ये हमने अगर इसको बेसिक मान लिया, ये एक इनिशियल हो गया, अब इसको रोटेट कर रहे हैं, बहुत सारे इसके कंफर्मेशन बनेंगे और एक कंफर्मेशन आखिरी में मिलेगा जो एक्सट्रीम कंफर्मेशन होगा। वो एक्सट्रीम कंफर्मेशन को पढ़ते हैं 2 एक्सट्रीम कंफर्मेशन। फर्स्ट है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या होता है, एटम्स आर फार अपार्ट, एटम्स बॉन्डेड एटम्स आर far apart from each other, staggered, they are far apart from each other। और दूसरा है इक्लिप्स।
अब एक्लिप्स तो आपको समझता ही है, एक्लिप्स यानी जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्लिप्स में एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, दैट इज एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो बहुत सारे हैं, उसमें से हमने दो एक्सट्रीम लिए, एक है स्टैगर्ड जहां पर एटम्स दे आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड अनदर इज एक्लिप्स वेयर एटम्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, एक्लिप्स कर जाएंगे। इसको हम अभी देखेंगे, समझेंगे कैसे होता है स्टैगर्ड वाला, करेक्ट है। तो बेटा अब क्या करना है, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ डायग्राम बनाए हैं। अब स्टैगर्ड और एक्लिप्स को कंफर्म करने के लिए दो थ्योरी दी गई थी, है ना। ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स को, देयर आर टू थ्योरी प्रोवाइडेड और टू स्टडीज आर डन, two theories provided. One is Sawhorse projection, और दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ये दोनों को हम समझेंगे कि इसी में स्टैगर्ड और एक्लिप्स कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब जैसे मुझे ये मेरा ईथेन मॉलिक्यूल हो गया, अब मैंने ईथेन यहां लिख दिया ऐसा, अब अगर इसका अरेंजमेंट हमें शो करना है तो वो अरेंजमेंट में आपको क्या दिखेगा, जैसे यहां मैंने रख दिया ईथेन या ऐसा ईथेन रख दिया, तो आपको इसमें से जो बैक साइड वाले हाइड्रोजन है वो दिखेंगे नहीं, है ना, ये फ्रंट जो आ रहे हैं वही दिखेंगे। तो अगर मैं इसको फ्लैट ऐसा रखता हूं, सो दिस विल नॉट हेल्प अस इन डिसाइडिंग द अरेंजमेंट। ये कैसा लग रहा है कि सब एक ही प्लेन में है, जबकि ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल यानी कैसा, एक बॉन्ड जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, एक बॉन्ड है जो प्लेन के अंदर जा रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये अभी आपको उसी प्लेन में दिखेगा जिस प्लेन में कार्बन है। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो 3 डायमेंशनल बनाएगा, है ना, अरेंजमेंट जो रहेगा 3 डायमेंशनल होगा। और वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये पोजीशन में रखा तो पूरे एटम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर इसको हमने थोड़ा सा ऑब्लिक कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो अब देखिए ना, अभी सभी एटम्स हमारे सामने आ जाएंगे, ऑल द एटम्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। कि ये जो अंदर जा रहा है बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बाहर निकल रहा है, और जो प्लेन में है ये प्लेन में है, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो we can very well visualize all the hydrogen atoms which are bonded to carbon atom, है ना। सामने से देखने से कैसा दिखेगा, पीछे के बॉन्ड और हाइड्रोजन दब जाएंगे, लेकिन इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो अब आपको सब दिखेगा, है ना। आपने अगर सामने से देखा तो ये ऐसा देखा तो ये पीछे के हाइड्रोजन ये वाले दब गए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं थोड़ा सा टेढ़ा, तो अब क्या हो जाएगा, आपको अब ये तीनों भी हाइड्रोजन नीचे के और 3 हाइड्रोजन ऊपर के, ये सब दिख रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सॉ-हॉर्स अरेंजमेंट। और यहाँ पर देखिए वैसा ही ये सॉ-हॉर्स अरेंजमेंट जो फर्स्ट अरेंजमेंट है वो यहाँ दिख रहा है आपको। क्या किया हमने, उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं रखा, थोड़ा सा ऑब्लिक एंगल ले लिया उसमें। अब आपको ये सब दिख रहे हैं। यहां देखिए ये जो रेड कलर से है ये कार्बन है। अब ये है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या लिखा है बेटा हमने, दे हाइड्रोजन एटम्स आर अपार्ट, हाइड्रोजन एटम्स आर अपार्ट, तो कोई हाइड्रोजन किसी के क्लोज नहीं आ रहा है, सही ना। ये दोनों स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने हैं और याद भी रखने हैं। तो ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ईच कार्बन आर क्वाइट अपार्ट।
अब इसको हमने रोटेट किया, है ना, इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर लिया। ये स्टैगर्ड फॉर्म था, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ये देखिए ऐसा है ये अरेंजमेंट, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। रोटेट कर दिया इसको, है ना, कि कहां से, सिंगल बॉन्ड वाला जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो अब क्या होगा, जब एक्सिस को रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आने लगे। अब क्या ये थोड़ा रिजिड है बॉन्ड, इसलिए मैं इसको पास में नहीं ला सकता, लेकिन आप फिनोमिना समझ रहे होंगे कि फिनोमिना क्या बोलता है कि पहले वो एक दूसरे के अपार्ट थे, अब वो देखो एक्लिप्स आ गए, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया, एक्लिप्स हो गए ये। तो ये है एक्लिप्स फिनोमिना। अब इसमें ये हाइड्रोजन एटम देखेंगे, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। तो सॉहॉर्स एकदम सिंपल सा फिनोमिना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैज अ टेंडेंसी ऑफ फ्री रोटेशन, it has a tendency of free rotation, and because of that free rotation it shows various conformations, और उसमें दो एक्सट्रीम conformations है, एक है staggered और दूसरा है eclipse। staggered में हाइड्रोजन एटम्स दे आर अपार्ट, और जब उसको रोटेट करेंगे तो eclipse में आ जाएंगे तो एक दूसरे को वो कवर भी करेंगे, एंड दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। ये है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन थ्योरी। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन थ्योरी ये यहां पर है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन थ्योरी। नाउ न्यूमैन थ्योरी सेज व्हाट, कि आप कार्बन को सर्कल समझिए, एक जैसे ये यहां पर है, स्टैगर्ड की बात करूं मैं आपसे, है ना, स्टैगर्ड यानी दे आर क्वाइट अपार्ट। तो ये एक कार्बन सामने जो दिख रहा है आपको, और ठीक उसके पीछे एक दूसरा कार्बन। तो पहला वाला कार्बन जो सामने से दिख रहा, इसको हम एक डॉट से शो करते हैं यहां पर सेंटर में। एक्चुअली ये सर्कल ही है, लेकिन इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं डॉट के फॉर्म में। तो ये एक फ्रंट वाला कार्बन, इसके बैक वाला कार्बन, अब उसको डॉट से नहीं शो करके उसको एक बड़े सर्कल से शो करते हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो अब कैसे बॉन्ड दिखेंगे आपको, जो फ्रंट वाला है उसका तो पूरा बॉन्ड दिखेगा, देखिए ये फ्रंट वाला है, इसका पूरा बॉन्ड दिखा, ये भी पूरा बॉन्ड है, ये भी पूरा बॉन्ड है। लेकिन जो बैक साइड से गया वो क्या करेगा, कुछ तो पार्ट है जो इसका ब्लॉक करेगा वो, और वो ब्लॉक करेगा, इसीलिए जो बैक साइड वाला कार्बन बड़े सर्कल से हम शो कर रहे हैं, उसका बॉन्ड सर्कल की एज से शुरू करेंगे, तब तो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसको भी अगर यहां से कर दिया तो क्या मतलब ही नहीं रहेगा। तो दोनों कार्बन अलग है, एक कार्बन सेंटर डॉट में और एक कार्बन सर्कल में। जो डॉट वाला है वो फ्रंट कार्बन है, इसीलिए आपको इसके पूरे बॉन्ड दिख रहे हैं, करेक्ट है, पूरे बॉन्ड दिखे तो हमने डॉट से लेके हाइड्रोजन तक के कंप्लीट बॉन्ड बनाया। लेकिन बैक साइड वाला कार्बन जो है, इसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेंगे वो यहां से शुरू करेंगे। ये देखिए यहां से शुरू करेंगे हम, बैक साइड वाला जो है यहां से बॉन्ड शुरू करेंगे, इसीलिए उसको सर्कल के एज से दिखाएंगे। तो दिस इज व्हाट द स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब उसको सर्कल के थ्रू दिखाना है, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, और एक बनेगा आपको यहां पर जो बैक साइड से जाएगा, तो रेड कलर से हम ड्रॉ करते हैं इसको, है ना। ये देखो बेटा, ये आ गया यहां सेंटर से, यानी कौन सा कार्बन आ गया, ये फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड पूरे दिखने वाले हैं हमको, और बैक साइड वाले के बॉन्ड कहां से शुरू होंगे, ये सर्कल के एज से शुरू होंगे, है ना, ये सर्कल के एज से शुरू होंगे।
तो ये हो गया स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड को समझना है अपने तरीके से। तो स्टैगर्ड मीन्स व्हाट, कि एक दूसरे को जो क्रॉस कर दे यानी अपोजिट साइड में आ जाए। जैसे ये 120 डिग्री दिख रहा है आपको, तो दूसरे वाले का 120 कहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे से। यानी स्टैगर्ड को अगर समझना है, ये हो गया। अगर स्टैगर्ड मुझे बनाना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, ये और ये स्टैगर्ड यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्टैगर्ड यानी एक दूसरे को लॉक करके वो पड़े रहेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है ना। ये अगर बैक साइड वाला कार्बन है तो ये बेटा कहाँ से आएगा, इधर से। और ये फ्रंट साइड कार्बन है तो ये फ्रंट साइड कार्बन इधर से आ गया। हो गया ना, देखो आपका अरेंजमेंट। स्टैगर्ड बोलते हैं इसको, है ना। ये अपोजिट साइड में, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब दूसरा एक्लिप्स वाला है। तो एक्लिप्स में क्या होगा, रोटेशन किया, स्टैगर्ड था। अब एक्लिप्स में ये देखो आपके सामने एक्लिप्स वाला स्ट्रक्चर है। आपको ये हाइड्रोजन इसके सामने आ गया, जैसे सन मून एक्लिप्स हम देखते हैं, तो वैसे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने आ गया। आपको सिर्फ यही दिखाई देगा, थोड़ा सा पार्ट इसका दिखेगा। वैसा ही सेम यहाँ से राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले दोनों, तो यहाँ के दोनों लेफ्ट वाले हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे और इधर के हाइड्रोजन ये भी एक्लिप्स करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्लिप्स स्ट्रक्चर। देखिए अच्छे से समझ जाएगा आप। ये हो गया आपका एक्लिप्स स्ट्रक्चर। ये वाले बॉन्ड बेटा पूरे दिख रहे हैं, इसीलिए रेड कलर के हमने सेंटर से ड्रॉ किए। और जो बैक साइड वाला कार्बन है वो भी तो है यहाँ पर, तो उसको ब्लैक कलर से शो किया और उसके हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा दिखेंगे हमको, है ना। सो दैट अब एग्जैक्टली इससे के ऊपर तो ओवरलैप नहीं कर सकते कि हमने नहीं तो ऐसा बना दिया क्या। ये एक्लिप्स अगर बनाना है, ये सेंट्रल कार्बन, फ्रंट कार्बन, अब बैक वाला कार्बन ये आ गया। अब इसके अगर हाइड्रोजन बनाने हैं हमको तो कहाँ बनाएंगे, इसी के ऊपर, ऐसा जी नहीं, ऐसा बनाना नहीं है हमको। हमें किस तरह से करना है ड्रॉ, कि उसकी एज से जो बॉन्ड है वो तो एज से शुरू होगा और थोड़ा सा पोर्शन उसका झलकता रहेगा हमको। कंप्लीट तो दिखेगा नहीं। कंप्लीट दिखेगा क्या इसमें हाइड्रोजन एक्लिप्स होने के बाद, बिल्कुल नहीं। एक्लिप्स होने के बाद वो कंप्लीट दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। थोड़ा सा झलक दिखेगी, तो वो झलक दिखला जा, ये आ गया यहाँ पर। तो ये बेटा क्या हो गया, न्यूमैन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो ये अभी आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्फर्मेशन, why do we see conformation in alkanes, because there is a free rotation of single bond about carbon atoms, है ना। free rotation of single bond about carbon atoms is providing conformation, otherwise possible नहीं है। डबल बॉन्ड रहेगा तो ये कंफर्मेशन इस तरह से नहीं आएगा, वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। उसका भी मॉडल हम देखेंगे जब हम अल्कीन्स पढ़ेंगे। अभी अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड की बात करें तो फ्री रोटेशन है, ये दोनों घूमते रहेंगे अपनी जगह पे। एंड दैट रोटेशन विल प्रोवाइड टू एक्सट्रीम आइसोमर्स, टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन। वन इज स्टैगर्ड, अनदर इज एक्लिप्स। स्टैगर्ड क्या होता है, वेयर एटम्स आर फार अपार्ट, एटम्स आर फार अपार्ट। और एक्लिप्स में क्या होता है, atoms are close to each other. So here you see hydrogen are close, hydrogen are close, और अगर सर्कल से भी शो किया तो वो भी हमें क्लोज दिख रहा है। तो टू थ्योरी, टू फॉर्मूला, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें ऑब्लिक एंगल लेके हम क्या कार्बन को दिखाएंगे, यहाँ पर ऑब्लिक एंगल लिया और ये कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स शो कर दिए हमने। और दूसरा है न्यूमैन। न्यूमैन में क्या किया हमने कि जो फ्रंट वाला का, ये न्यूमैन को हम एंड टू एंड देखते हैं, यानी हेड ऑन देख रहे हैं।
आप हेड ऑन इसको देख रहे हैं, ये न्यूमैन की थ्योरी है, हेड ऑन कन्फर्मेशन। तो ये हेड ऑन होने से ये पूरा विजुअलाइज है और ये पार्शियल विजुअलाइज होता है आपको। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसमें भी स्टैगर्ड एटम्स आर क्वाइट अपार्ट, एटम्स आर क्वाइट अपार्ट, एंड एक्लिप्स में क्या है, एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। So this is all about confirmation. In our next class, we will take methods for the preparation of alkanes and the reactions of alkanes. Okay, thank you so much.